ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حجاج اکرام کے لیے روبات تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا حجاج اکرام سے خطاب۔ حج کے دوران صبر و تحمل بہت ضروری۔ اسد الدین اویسی کا حیدرآباد میں حجاج اکرام سے خطاب۔ وی ہب وومین پروگرام سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ کہا خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی پالیسی کا مرکزی ستون۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے پریس کانفرنس۔ وقف بل کے خلاف آئندہ کی لاہے عمل کی بیان کی تفصیلات۔ ٹی ایس آر ٹی سی نے عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے مہم کا کیا آغاز۔ مسافروں کو پیش کیے جا رہے ہیں پھول۔ حیدرآباد شہر میں مانسون کے دوران ممکنہ شہری سیلاب کے خطرات کے پیش نظر ہیڈرا نے ماہرین کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا منعقد۔ دبئی میں حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند کو ایوارڈ دیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دی مبارکباد۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کل شام حج ہاؤس نامپلی میں حجاج اکرام کے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر حج کمیٹی چیئرمین سید افضل بیابانی خسرو پاشا نے ریونت ریڈی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، روزگار اور سماجی بہبود کے شعبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے فائدہ دیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حجاج اکرام کے لیے روبات تعمیر کرے گی، اور بتایا کہ اس سال تمام 6000 حج درخواست دہندگان کو منظوری دی گئی ہے۔ ریونت ریڈی نے صدر مجلس اسد الدین اویسی کے سوال پر کہا یہ پرانا شہر نہیں اصل شہر ہے، اور بتایا کہ 2000 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم اور نوجوانوں کے لیے روزگار اسکیموں میں مسلمانوں کو برابر کا حصہ دینے کی بھی بات کہی۔ تقریب میں صدر مجلس اسد الدین اویسی، صدور نشین عظمت اللہ حسینی، طاہر بن حمدان، عبید اللہ کوتوال، ڈاکٹر ریاض، فہیم قریشی، رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھی۔ یہ سرکار بنے آپ کے مدد سے، تو جب آپ کے مدد سے تلنگانہ سرکار، تلنگانہ حکومت جب چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو جو بھی منظور کرنا ہے ہمارے ذمہ داری نبھانے میں ہم کبھی بھی پیچھے ہٹے نہیں۔ اور خاص کر اس موقع پہ بہت خوشی کی بات ہے، میرے گاؤں کے لوگ زیادہ سے زیادہ جا رہے ہیں، ہمارے محبوب نگر سے میرے گاؤں کے لوگ ابھی یہاں سے جو جا رہے، ضرور ہمارے خوشی کی بات ہے۔ محبوب نگر سے جب میرے کو ان کے بھائی کو تلنگانہ کے مکھیہ منتری بنایا تو تب محبوب نگر کے لیے تو خاص کر کچھ نہ کچھ کرنے کی ذمہ داری میرا ہے۔ اسی لیے آج جو محبوب نگر سے جو خاص کر حج کو جا رہے سب کو میں دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے جو جا رہے ان لوگوں کو جو بھی ضرورت ہے تلنگانہ سرکار دے، مدد کرے۔ اور شبیر علی صاحب نے سامنے والے بنگلہ کے لیے 25 کروڑ مانگے، ہمارے اسد صاحب نے کیا 25 کروڑ مانگ رہے، بھائی 500 کروڑ مانگو بول رہے۔ تو میں پہلے ہی بولے اسد صاحب کے ساتھ ساتھ اولڈ سٹی میں جب گئے، یہ اولڈ سٹی نہیں ہے، یہ اوریجنل سٹی ہے۔ اوریجنل سٹی کو اچھا خوبصورت بنانے کے لیے ہم سب سارے پیسے دیں گے۔ اب تک اسد الدین اویسی صاحب نے جو بات بولے کم سے کم میں حساب کتاب تو نہیں کیا، مگر کم سے کم 2000 کروڑ روپے میں وہاں پر ان کے پارلیمنٹ چھیتر میں جو کام کرنے کے لیے، میٹرو ریل بنانے کے لیے، سڑک بنانے کے لیے، میرالم چرو میں جو فلائی اوور برج بنانے کے لیے، باقی کے کاموں کے لیے میں پیسے دیتے گئے۔ تو اور آنے والے دنوں میں جو کانگریس سرکار نے جو اندرما گھر دے رہے، جتنا مسلمان ہے اتنا پرسنٹیج آپ لوگوں کو دینے کے لیے میں سرکار میں ادھیکاریوں کو، کیونکہ بہت سارے غریب لوگ ہیں مسلمانوں میں، نام کے لیے یہ سرکار کے طرف سے، سرکار کے نظام کے وارث ایسا سمجھتے ہیں، مگر غریبی دیکھے تو سب کا غریب ہے۔ اسی لیے جو سرکار کے ویلفیئر اسکیم ہے، ہر ویلفیئر اسکیم میں وہ فیس ریئمبرسمنٹ ہو، نہیں تو اندرما گھر دینے کے، اور سرکار نوکریوں میں بھی ابھی جو ریکروٹمنٹ ہوا میں پورا ڈیٹا ہے، ہر جگہ میں مسلمانوں کو جو حصہ ملنا ہے برابر حصہ دینے کے لیے تلنگانہ راجیہ سرکار نے تیار ہے۔ اور دوسری بات رہا ہم لوگ، آپ لوگ جو آج تک
ये हाजियों के लिए रूबत कहीं पर नहीं है। खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रूबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रूबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतज़ाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रूबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिड़पल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रूबत, अच्छा शानदार रूबत हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो। ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है, आगे बिल्डिंग भी पूरी करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाज़ा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास, जो गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6,000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। हज हाउस हैदराबाद में हुज्जाज इकराम से खिताब करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हज सब्र व तहम्मुल का नाम है। वहाँ हर सहूलत घर जैसी नहीं होती। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मगर ये अल्लाह का घर है, वहाँ सब्र से काम लेना होगा। हज कमेटी और दीगर इदारे भरपूर कोशिश करते हैं कि हुज्जाज को आराम व सुकून मैसर हो। उन्होंने कहा कि हुज्जाज तेलंगाना रियासत के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह इसे ताकतवर और पुरअमन रियासत बनाए और वज़ीर आला के नेक इदारों और मंसूबों की कामयाबी के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क भारत के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह यहाँ अमन व अमान को मजबूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बुला रहा है, अल्लाह आपको हज को कबूल करे। और हज में सब्र करना पड़ेगा आपको। बहुत से हाजी जाते हैं और जाकर जैसा वहाँ पे पहुँचते फ़ोन शुरू हो जाता, हमारे को ये नहीं मिला, हमारे को वो नहीं मिला। ये आपका घर नहीं है, ये हरगिज़ आपको घर की सहूलत नहीं मिल सकती। वहाँ पे आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। जाहिर है हज कमेटी और सब लोग कोशिश किए आपको जितना हो सकता है इत्मीनान आपको मिले, वहाँ पर राहत मिले। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये सब चीज़ें होंगी। और आप ख़ास तौर से दुआओं में सबके लिए दुआ करिए, तेलंगाना रियासत के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह यहाँ पर इसको तेलंगाना को रियासत को एक ताकतवर रियासत बनाए, यहाँ पर अमन मजबूत हो, यहाँ पर जो ख्वाब और जो प्रोग्राम लेकर यहाँ के वज़ीर आला आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह उनके इन तमाम ख्वाबों को जो नेक हैं अल्लाह उसको पूरा कर सके। और आप अपने वतन अजीज़ के लिए दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे मुल्क में अमन को मजबूत करे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वी हैव वुमेन प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की पॉलिसी का मरकज़ी सुतून है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत का विज़न 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाना है और इसके लिए तालीमी, मुआशी और कारोबारी मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। कहा, महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत, स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई के ठेके ख़वातीन ग्रुप्स को और सोलर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की ख़वातीन माली एतबार से नज़्म व ज़ब्त की मिसाल है, जो छोटे क़र्ज़े भी सूद समेत वक्त पर वापस करती है। उन्होंने ख़ुद मददगार ग्रुप्स को शहरी इलाकों तक वसअत देने का ऐलान किया और बताया कि इनके तैयार करदा मसनूआत को अब सरकारी तोहफ़ों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाते हुए कहा, मैं आपके रेवंत अन्ना के तौर पर आपके साथ खुद मुख्तारी और खुशहाली के राह पर कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। 67 లక్షల మంది సభ్యులు ఉన్నారు। ఈ 67 లక్షల మంది సభ్యులను కోటి మందిగా మార్చాల్సిందిగా సంఘాలలో సభ్యులుగా చేయాల్సిన బాధ్యత మీదే। ఆ కోటి మంది మహిళలు అనుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా గద్దెనెక్కించగలరు, ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా గద్దె దించగలరు।
మొన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను బాధ్యత చేపట్టిన అంటే 92 లక్షల ఓట్లు వచ్చినాయి. మరి 1 కోటి మంది మహిళలు 1 కోటి ఓట్లు మీరు ఎక్కడ ఓటు వేస్తే అక్కడ, వీళ్ళెవ్వరు ఓటు వేసినా వేయకపోయినా మీ 1 కోటి మంది మహిళలు అనుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించగలరు, నిర్దేశించగలరు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించగలరు. అంత గొప్ప మహిళా శక్తి ఉన్న మహిళల్ని ప్రోత్సహించడం మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. మీ సభగా ఇప్పటికీ 16-17 నెలల్లో 5,200 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఆర్టీసీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించడం జరిగింది. మా మహిళలు ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వినియోగించుకోవడం వల్ల ఆడబిడ్డలకు ఒక్కొక్కరికి దాదాపుగా నెలకు 5,000 రూపాయలు ఆదాయం మిగలడమే కాకుండా ఆర్టీసీ కూడా ఈరోజు లాభాల బాటల్లో నడుస్తుంది. గతంలో ఆర్టీసీ నష్టపోయి ఆర్టీసీని ప్రైవేటైజ్ చేస్తారన్నంత ప్రమాదానికి దారితీసింది. ऑल इंडिया मुस्लिम बरसल्ला बोर्ड की जानिब से हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन, मौलाना क़यास अहमद रशादी, मौलाना जाफ़र पाशा, अकबर निज़ामुद्दीन और मौलाना महमूद ज़ुबैर क़ासमी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ बोर्ड के आइंदा लाहे अमल की तफसीलात पेश की। वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ जो स्लोगन दिया है वो ये है कि वक्फ़ बचाओ दस्तूर बचाओ, और इसका मतलब ये है कि ये कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिए गए थे उसके ख़िलाफ़ है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 इन सब में जो हुकूक़ हमें दिए गए हैं उन सब का ये वॉल्यूशन है। तो इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ये समझता है कि ये मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम इशू नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बरकरारी का मसला है। चुनांचे इसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना एक्शन प्लान बनाया है एहतजाज के लिए और डेमोक्रेटिक अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें जो आइटम्स थे उसमें एक है पब्लिक मीटिंग्स। तो पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ पब्लिक मीटिंग्स मुनक़िद की जा रही हैं, ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं। अगरचे अभी जैसा होना चाहिए नॉर्थ इंडिया में वहाँ के हालात की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा कि अभी हमसे पेशरों लोगों ने बताया कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था 81 MPs से ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पार्लियामेंट में जो इस कानून के ख़िलाफ़ वोट डाले गए वो 232 वोट थे। आप पिछली तारीख़ देख लें कि पार्लियामेंट के किसी कानून के ख़िलाफ़ इतना अपोजिशन पार्टीज़ का इत्तेहाद आपको नज़र नहीं आएगा। बैकग्राउंड में जो कोशिशें की गई ये उसका असर था। अब इसके बाद जो अपकमिंग हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें 6 तरह के प्रोग्राम हैं। एक है पब्लिक मीटिंग, तो हैदराबाद में आपने देखा दारुस्सलाम में 2 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की। अब उसके अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम है जिसको कहते हैं राउंड टेबल मीटिंग। ये कल इंशाअल्लाह मखसूस लोगों के साथ, मुस्लिम गैर मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके साथ साथ सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके साथ मिलकर ये राउंड टेबल मीटिंग रखी जा रही है कल। उसके बाद दूसरा आइटम है ह्यूमन चैन। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 25 मई को संडे के दिन दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे हाफ एन आवर का ये पूरी एक्टिविटी है, और इसके पूरे रूट्स फिक्स कर दिए गए हैं जिसमें लाखों लोग कई किलोमीटर लंबी ह्यूमन चैन बनाएंगे। उसमें मर्द हजरात शरीक होंगे, घर के ख़वातीन को लेकर आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ, पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ शिरकत करें। और इसको मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारे पास एक बड़ी टीम है और मुख्तलिफ इलाक़ों में ज़िम्मेदार मुंतखब किए गए हैं। इसके साथ साथ जो एक बड़ा प्रोग्राम अभी हम लोग मुनक़िद कर रहे हैं वो है ख़वातीन के लिए मखसूस प्रोग्राम। बार बार हुकूमत ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया में ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये वक्फ़ कानून ख़वातीन को हुकूक़ फ़राहम करने के लिए और नुमाइंदगी फ़राहम करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात है, और आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ख़वातीन उसके ख़िलाफ़ हैं। यहाँ 2 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन मौजूद हैं। इसके अलावा भी अभी जो प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं इसके हवाले से 22 तारीख़ को हॉकी प्ले ग्राउंड में बाद नमाज मगरिब
मासब टैंक पर बहुत बड़ा ख़वातीन का प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन शरीक होंगी। मोस्टली स्पीकर्स भी ख़वातीन रहेंगे और कुछ बोर्ड के मेल मेंबर्स भी रहेंगे, और महुआ मतरा वगैरह और इस तरह के जो गैर मुस्लिम बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी उसमें शरीक हो रहे हैं, इमरान मसूद साहब आ रहे हैं वगैरह। तो ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है। इसके साथ एक और चीज़ जिसको हमें बहुत कामयाब बनाना है वो है प्रोटेस्ट। 1 जून को इंदिरा पार्क में बोर्ड की पूरी क़यादत, तमाम मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान और इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में मुसलमान मर्द व ख़वातीन उसमें शरीक होंगे। तो ये पूरा जो एक्शन प्लान है डेट वाइज आपको उसकी कॉपी हम फराहम कर देंगे। ये बस ब्रीफ करने के लिए 5-6 टाइप के जो प्रोटेस्ट हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। अभी आपने हमारे ज़िम्मेदारों से परसल्ला बोर्ड के सिलसिले में तफसीलात जो कुछ थी बयान की गई है, लेकिन हमको ये भी करना ज़रूरी है कि ये हुकूमत सिर्फ हमारे जलसों से सुनने के या सुनकर उस पर हमारे लिए कोई रास्ता पैदा करेगी ये उम्मीद नहीं है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जितना हो सके अमन व अमान को बरकरार रखते हुए जितना मुमकिन हो सके हुकूमत को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि ये जो आपने क़ानून लाया है ये किसी एक के लिए नहीं है बल्कि हर एक के लिए, हर तबके के लिए नहीं नुकसानदेह है। और इसका अंदाज़ा यूँ भी लगाइए आप कि आज ये मुसलमानों के लिए जो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, यही परेशानियां दीगर जो अपने ज़िम्मेदार है, जैसे दीगर मज़ाहिब के ज़िम्मेदार है, वो बयान करने वाले बयान कर रहे हैं कि हमारे पे भी आ रही है बात कहीं ना कहीं से। तो हमारी ये कोशिश है कि जितना मुमकिन हो सके अदालत के ज़रिए और हमारे बोर्ड के तरफ से हम जो कुछ कर सकते हैं करते हुए इन तमाम को जो ये क़वानीन लेके आए हैं उनसे न सिर्फ गुफ्तगू करें बल्कि उनको ये समझाने की कोशिश की जाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, हमारी कौम को ख़ुद अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क़ानून है क्या। हमारी कौम को पहले समझना चाहिए कि ये वक्फ़ क़ानून क्या है। तो इसके लिए वक्फ़ के क़वानीन जो है और जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें शिरकत करना भी ज़रूरी है। जब तक आप शिरकत नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं होगा कि ये लड़ाई कई की है, ये हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं। लिहाजा हमारे अवाम उन्नास तक आपके ज़रिए जब बात जाएगी तो उनको ये मालूम होगा कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं ये वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता तफसीलात में कि अब इसमें क्या बात कही जाए क्या नहीं, मगर ये है कि जो कुछ काम हो रहा है हमारी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहें और हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह इस काम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हुकूमत को हम कोशिश करेंगे अदालत के ज़रिए हो या किसी और ज़रिए से हो कि ये क़वानीन को वो वापस ले। हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें, हमारी जो मेरी आवाज़ सुने वो भी दुआ करें कि हमारी इस कोशिश को अल्लाह कामयाब करें और हमारे लिए रास्ते अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाएँ। तेलंगाना आरटीसी ने अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए एक मुनफरिद मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके तहत मुसाफिरों को गुलाब के फूल पेश किए जा रहे हैं। कंडक्टर्स ने मुसाफिरों को फूल देते हुए इनसे अपील की है कि वो ज़ाती गाड़ियों के बजाय आरटीसी बसों को तरजीह दें ताकि ट्रैफिक के दबाव और हादसात में कमी लाई जा सके। उन्होंने आरटीसी बसों को महफूज, आरामदा, सस्ती और माहौल दोस्त करार दिया। ये मुहिम वनस्थलीपुरम में शुरू की गई है। मुसाफिरों ने इस इक़दाम को एक मुस्बित और जज्बाती पैगाम करार दिया जो अवाम और ट्रांसपोर्ट निज़ाम के दरमियान एतमाद को मजबूत करता है। आरटीसी हुक्काम को उम्मीद है कि इस मुहिम से न सिर्फ सफ़र करने वालों की तादाद बढ़ेगी बल्कि अवाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शऊर में भी इजाफा होगा। हैदराबाद के गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में आज दिलकश मंजर देखने को मिला जब दुनिया भर से आई मिस वर्ल्ड के हसीनाओं ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर शिरकत की। इस इवेंट में बैडमिंटन, टेबल टेनिस,
والی بال اور یوگا جیسے کھیل شامل تھے، جس کا ریاستی وزیر سیاحت نے افتتاح کیا، جہاں عالمی حسیناؤں نے فٹنس، نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایونٹ میں یوگا کے مشترکہ مشق کے ذریعے ذہنی سکون اور جسمانی صحت کا پیغام دیا گیا۔ شہریوں نے مس ورلڈ امیدواروں کے اسپورٹس جذبے کو سراہا، جبکہ اعلیٰ حکام، اسپورٹس اتھارٹی کی شخصیات اور مس ورلڈ آرگنائزیشن کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے۔ ریاست تلنگانہ میں بھی تیز دھوپ و گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کے حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے اندرا نگر چوراہے کے پاس تلنگانہ پردیش یوتھ کانگریس کی جانب سے راہگیروں کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئی۔ یہ پروگرام چندران گٹا یوتھ کانگریس کے نائب صدر سید عزیز الدین کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے صدر راہل، چندران گٹا اسمبلی کے انچارج قاضی محمد ابراہیم اور دلاور حسین ریاست نگر ڈویژن کے صدر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ السلام علیکم، میں سید عزیز الدین، چندران گٹا اسمبلی وائس پریزیڈنٹ یوتھ کانگریس۔ آج گرما کے موسم میں راہگیروں کو، جو راہگیر ہے وہ لوگ کو ہم نے آج پانی تقسیم کیا۔ اس پروگرام کا منشا صرف مقصد ایک ہی ہے کہ جو راہگیر اس گرما کے موسم میں سفر کر رہی، جو اس گرمی کو شدت کو سہ رہی، اس شدت کو دور کرنے کے لیے ہم نے پانی کا پروگرام چوراستوں پہ کیا، جس میں شامل تھے میرے ساتھ دلاور حسین، ڈویژن پریزیڈنٹ ریاست نگر، میرے ساتھ میرے سینئر انچارج قاضی محمد ابراہیم، ان کے ساتھ موجود تھے خواجہ بھائی جو سرو نگر کے لیڈر ہے، اور ان کے ساتھ محمد عبدالعظیم، ہم ڈی سی سی راہل، جس کے ساتھ ہم یہ دیگر ٹیم مل کے ہم نے یہ کام کیا۔ اور اس پیغام یہ دینا چاہ رہے کہ یہی پروگرام ہر جگہ پہ عمل کیا جائے جہاں پہ راہگیروں کو تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں۔ شہر حیدرآباد نے مانسون کے دوران ممکنہ شہری سیلاب کے خطرات کے پیش نظر ہیڈرا حکام نے ماہرین کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں سیلاب سے بچاؤ کی حکمت عملی پر غور کرتے ہوئے ماہرین نے زور دیا کہ ندیوں اور نالے کی قدرتی راہداریوں کو محفوظ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ پرانے ریکارڈز، سیٹلائٹ تصاویر اور زمینی مشاہدے کی بنیاد پر تفصیلی سروے کا آغاز کیا جائے گا۔ ہیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے دوران آب گزاروں پر قبضے یا رکاوٹیں مستقبل میں شدید خطرات پیدا کر سکتی ہے، اس لیے بروقت اقدامات ضروری ہے۔ مزید اقدامات میں ڈیجیٹل نقشہ سازی، محکموں کے درمیان بہتر رابطہ اور عوامی آگاہی شامل ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے۔ دبئی میں منعقدہ انٹرنیشنل پولیس سمٹ میں حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند کو ایکسلنس ان اینٹی نارکوٹکس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کامیابی پر انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سی وی آنند کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ریاست کے لیے فخر کی بات ہے کہ 138 ممالک کے درمیان مقابلے میں تلنگانہ نے دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ یہ کامیابی منشیات کے خلاف حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور پولیس کی سخت محنت کا ثبوت ہے۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آج سعید آباد منڈل کے 73 مستحقین میں شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیر کے دن چار مینار منڈل کے مستحقین میں بھی چیکس تقسیم کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں کارپوریٹرز مظفر حسین، واسع الدین، شفاعت علی اور دیگر پارٹی کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ خالدہ بیگم، نمبر 3 خیرون بیگم، ٹیبل نمبر 4 خواجہ بیگم، نمبر 5 سعید آباد منڈل یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے جملہ 73 شادی مبارک چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں، جس میں میرے ساتھ میں سنتوش نگر کارپوریٹر جناب مظفر صاحب، رین بازار کارپوریٹر واصف الدین صاحب، کرما گوڑا نمائندہ کارپوریٹر شفاعت صاحب، تحصیلدار سعید آباد منڈل اور تحصیلدار کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم اور مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر صدر معتمدین، جس کی
लागत 73 चेक्स की हो रही 73,08,468 यानी 73 चेक है 73,08,468 रुपये के आज चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं सैदाबाद मंडल के। इंशाल्लाह पीर के दिन चार मीनार मंडल के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत के जो भी स्कीम्स आते हैं उसको आगे बढ़ के न सिर्फ मजलिस के ज़िम्मेदार बल्कि मजलिस के चाहने वाले आगे बढ़ के वो स्कीम को आवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी के सिलसिले में कंटिन्यूस हमने जैसे जैसे चेक्स बन रही साथ के साथ वो चेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए करा रहे हैं कि लोगों की ज़रूरत पूरी हो। ये स्कीम निकालने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे पिछली गवर्नमेंट तेलंगाना की ने शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम निकाली है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो भी हुकूमत के स्कीम्स रहेंगे उसको आगे बढ़ के मजलिस के जितने भी ज़िम्मेदार हैं आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हुज्जाज इकराम के लिए रूबात तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हुज्जाज इकराम से खिताब। हज के दौरान सब्र व तहम्मुल बहुत ज़रूरी। असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद में हुज्जाज इकराम से खिताब। वी हब वुमेन प्रोग्राम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की पॉलिसी का मरकज़ी सुतून। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ बिल के खिलाफ आइंदा की लाहे अमल की बयान की तफसीलात। TSRTC ने अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए मुहिम का किया आगाज़। मुसाफिरों को पेश किए जा रहे हैं फूल। हैदराबाद शहर में मानसून के दौरान मुमकिन शहरी सैलाब के खतरात के पेश नज़र हैदरा ने माहिरीन के साथ एक आला सतही इजलास किया मुनक़्क़िद। दुबई में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद को अवार्ड दिए जाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।